Good morning, class 12. How are you? When you will be going through this video, then you will be realizing that today we are basically coming on to the conclusion part of our chapter. Today, our topic from international organization is the role of, the importance of, the need of United Nations in a unipolar world. When I mention the word unipolar world, here I just want to suggest, here we are going to analyze the role of United Nations organizations post-Cold War. Post-Cold War happens when there was disintegration of Soviet Union. Soviet Union disintegrated when it broke down in the year 1990, and we can't deny the fact that in such a situation, when there was disappearance of USSR, only USA remained as a super पावर. यूनाइटेड नेशन का रोल यहीं से ही शुरू हो जाता है. क्या वर्ल्ड इस पॉइंट के लिए, इस सिचुएशन के लिए रेडी है दैट वी वांट टू लिव इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड? वी ऑल आर accepting the hegemony, the supremacy, the power of United States of America. Moreover, we can't deny the fact that US जो है वो अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग पावर है, चाहे वो अपने आप को मिलिट्री के रूप में मापे, चाहे वो अपने आप को इकोनॉमिक कंडीशंस में मापे, चाहे वो अपने आप को टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में मापे. And in such a situation, it became almost difficult to check the power of the United States of America. United States of America का influence United Nations के ऊपर भी बहुत ज्यादा था. सबसे पहला रीजन इन्फ्लुएंस का था because USA consists in P5. Since the beginning of the formation of the United Nations, it is holding a veto power and it can't be removed from the United Nations. USA ने प्रैक्टिकली बहुत बार अपनी वीटो पावर का भी इस्तेमाल किया है. पहले उसकी वीटो पावर को चेक सोशलिस्ट कंट्रीज करते थे, लेकिन आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ सोशलिस्ट कंट्रीज, who is there to check this veto power of America? Number 2, इस समय भी US जो है that is the single largest contributor, सबसे बड़ा contributor है in the financial matters of UN. रिमेम्बर आपकी बुक में हमने एक बजट वाला कॉलम किया था जब हम जुरिस्डिक्शन ऑफ यूनाइटेड नेशंस करने लगे थे और बजटरी प्रोसेस में रिफॉर्म्स करने लगे थे. तब हमने उस समय किया था यूनाइटेड नेशंस का शेयर मोर देन और नियरली अबाउट 20% है इन द यूनाइटेड नेशंस. तो यूनाइटेड नेशंस जनरली क्या करता है, उम्मीद की जा रही थी कहीं ऐसा ना हो कि जो यूएसए करने को कहे यूनाइटेड नेशंस वही करे. तीसरा, यूएस के जब हम इन्फ्लुएंस की बात करते हैं तो बेटा यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर, यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटरीट, यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल का ऑफिस, यूनाइटेड नेशंस में जनरल असेंबली का हेड ऑफिस, practically they all are located in, physically they all are located in United States. Not only this, यूनाइटेड नेशंस के जो बहुत सीनियर ऑफिसर्स होते हैं जो अलग अलग एजेंसीज को हेड करते हैं या ऑर्गन्स को भी सुपरवाइज करते हैं, maximum of United Nation bureaucrats are the nationals. They are having the nationality of the United States. Besides this, एक छोटा सा पॉइंट है हमारा यहाँ पर, अगर आपको नजर आ जाओ, वॉशिंगटन जो है उसका अपने आप में ही इतना ज्यादा दम है, जिस तरीके से वो डेमोक्रेटिक कंट्री है कि वो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल की पावर को होल्ड करता है. यूनाइटेड
नेशंस की जो एजेंसी है IMF, हम ये डिटेल में कर चुके हैं, पहली एजेंसी है जो आपकी बुक में मार्क की हुई है। इसमें 55% शेयर जो है आप कर चुके हैं, दैट इज इन द हैंड्स ऑफ सम पावर्स। इसमें से दोबारा से यूनाइटेड स्टेट का शेयर सबसे ज्यादा है, 17.4% तक हमने किया था। अल्टीमेटली यूनाइटेड नेशंस को बैलेंस कर पाना अगेंस्ट द powers of United States of America was seemingly impossible, but still United Nations is playing an very important role. What role is now played by United Nations is that number one, United Nations का सबसे बड़ी अचीवमेंट और रोल यही है कि आज भी ये किसी भी मुद्दे के लिए एक फोरम दे रहा है हमें। It is giving us a place to meet, to discuss, to debate all the international problems whatso are happening around the world. It is listening, it is providing guidelines to all the countries of the world so that we can able to maintain the economic and social security of the world. कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इतनी स्ट्रांग नहीं हो सकती जितना स्ट्रांगली यूनाइटेड नेशंस अपना काम कर रहा है। जनरल असेंबली के राइट नाउ द मेंबर्स आर 192। दैट मीन्स यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन इज हैंडलिंग द मैटर्स, the problems, the obstacles, the disturbances, the internal disputes, the ethnic wars and many other things of more than 190 nations. ये इतना आसान नहीं है, चाहे उसे यूनाइटेड स्टेट्स कितना भी क्रिटिसाइज करता रहे, लेकिन यूनाइटेड नेशंस अपने कदम उठाता ही उठाता है। यूनाइटेड नेशंस इन कदम उठाने के लिए सबको एक अपनी स्पेस प्रोवाइड करता है, सबको एक एरिना प्रोवाइड करता है। कैसे हम ये बात और ये एग्जाम्पल भूल सकते हैं कि सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट 1991 में हुआ था, कोफी अन्नान ने रिफॉर्म्स 1997 में लाए थे, जुरिस्डिक्शन ऑफ यूनाइटेड नेशंस को इम्प्रूव करने की बात ईयर 2005 में की गई थी। दैट मीन्स यूनाइटेड नेशंस सिर्फ यूएसए की बात नहीं सुनता, वो बाकी की कंट्रीज को एक स्पेस देने की, एक एरिया देने की बात करता है। इसके अलावा एक ऐसी इंटरनेशनल एजेंसी जो सिर्फ कंट्रीज को हैंडल नहीं करती, उन कंट्रीज में रहने वाली पॉपुलेशन के बारे में सोचती है। वर्ल्ड की पॉपुलेशन इस समय अप्रोक्सीमेटली जो लास्ट डाटा है वो 7 बिलियन को क्रॉस कर चुकी है। एंड यूनाइटेड नेशंस इंडिपेंडेंटली हैंडल्स द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द वर्ल्ड। फिर चाहे सीरिया हो या लेबनान हो, इंडिया हो या पाकिस्तान हो, म्यांमार हो या वियतनाम हो, दुनिया का कोई भी कंट्री हो, यूनाइटेड नेशंस एक मेजर रोल प्ले करता है। बेटा ये आपके लास्ट पैसेज में दिया हुआ है, मैं ऑनलाइन क्लास में ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन करूंगी इसे। इसमें ये दिया हुआ है कि ऑल्दो यूनाइटेड नेशन जो है वो एक परफेक्ट बॉडी नहीं है, वो परफेक्टली इंफ्रास्ट्रक्चर, परफेक्टली प्रोसेसेस, परफेक्टली रूल्स एंड रेगुलेशंस सब में परफेक्ट नहीं है। देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स विच आर बीइंग इंडल्ज्ड इन द यूनाइटेड नेशंस। लेकिन ये भी सच है कि अगर यूनाइटेड नेशंस नहीं होता तो शायद हमारी पोजीशन जो है वो और ज्यादा वर्स्ट हो सकती थी, बिकॉज countries were always in need of one such international organization. Thank you, class.